Hello everyone, welcome to another video by the Advent Biological Society. Now this is a combined video where we will include the part 5, part 6 and part 7 of the GATE Excel Zoology crash course. Now we have already covered 4 classes and here we are in the 5th, 6th and 7th classes. I'd request you all to attend the live classes to get further updates. Now here in this class which we have already discussed about the type specimens. Now what we discussed in the live class was like this, that there were several typification processes that are available in case of the branches of taxonomy. Now in case point of view of GATE, in 2015 and 2000 and probably 2013 there were 2 questions which were asked from this area of typification, and the specimens can be in the form of holotype. The holotype is basically the original nomenclature type on which the nomenclature of an organism is generally based. Isotype is the duplicate of the holotype. holotype जो होता है वो basically original type होता है, मतलब जो original nomenclature या फिर कोई species को अगर किसी ने discover किया हो तो वो species जो है वो generally हॉलोटाइप के अंदर पड़ता है। और उसके अलावा जो हॉलोटाइप का डुप्लीकेट यानी कि ओरिजिनल का जो डुप्लीकेट यानी कि जेरोक्स कॉपी जो होता है वो होता है आइसोटाइप। Then there is paratype, that is a specimen described along with the holotype. That means it can be something which is described along with the original specimen. Then there can be syntype, any of the specimen quoted by the discoverer when there is no holotype present. अगर कोई holotype या फिर original species नहीं present है तो जो डिस्कवरर ने कोट किया था उस वक्त उसको हम लोग सीन टाइप के नाम से जानते हैं। देन देयर इज लेक्टोटाइप, दैट इज स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर इन द एब्सेंस ऑफ हॉलोटाइप। ओके, यानी कि ओरिजिनल कलेक्शन से लिया गया ऐसा स्पेसिमेन को हम लोग लेक्टोटाइप कहते हैं जो लिया गया था तब जब हॉलोटाइप एब्सेंट था। देन नियोटाइप यानी कि न्यू नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल, यानी अगर ओरिजिनल मटेरियल जो है ओरिजिनल स्पीसीज है ओरिजिनल नोमेनक्लेचर टाइप है यानी कि हॉलोटाइप अगर खो गया कहीं पे लॉस्ट हो गया देन नियोटाइप का प्रवेश यहाँ पे होता है। सो दिस आर द बेसिकली द टाइप्स दैट आर प्रेजेंट: हॉलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप, लेक्टोटाइप एंड नियोटाइप। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल. If you have any kind of doubt in this area, please do ask in the comment section. Now, is there a holotype? No. Is there already a lectotype or a neotype? No. Are there any isotypes? No. Are there any syntypes or isosyntypes? No. Are there any paratypes? No. Are there any elements of original material, cited illustrations or uncited illustration? No. Then designate it as a neotype. So this is what we consider in a negative situation. But yes, if there is a holotype, then we haven't to do anything. If there is no holotype, then go for lectotype or neotype. If there is a lectotype syntype, then do nothing. Then again, if there is no lectotype or neotype, then go for isotypes. If there is no isotype, then go for isosyntypes. Then if there is no isosyntypes, go for paratypes and then go for neotype if there is nothing which is present over here. Neotype means तुम अगर कुछ चीज़ों को ऐसे नोमेनक्लेचर करो जो हॉलोटाइप या फिर कुछ भी टाइपिफिकेशन का पैटर्न हो सकता है, लेक्टोटाइप हो सकता है, आइसोटाइप हो सकता है, अगर कुछ भी ना हो, इफ देयर इज नथिंग प्रेजेंट देन यू डेजिग्नेट दैट सैंपल एज अ नियोटाइप. नियो का मतलब न्यू है, नया टाइप, नियोटाइप. सो दैट इज द थिंग अबाउट द टाइपिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी. सो द नेक्स्ट थिंग विच वुड बी टॉकिंग अबाउट इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज नोन एज ecotone. Okay, it is not a process but it is a region basically. So what is an ecotone? Now you know that there are many types of ecosystems that is present all over our earth. Now there can be two ecosystems which are interacting with each other at a single place. Like ऐसा हो सकता है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के साथ किसी जगह पे कनेक्टेड है मतलब बैरियर के, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक जगह पे खत्म हो रहा है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहीं से शुरू हो रहा है. डिस्कवरी चैनल या फिर जो ऐसे चैनल्स है, हिस्ट्री टीवी 18 हो सकता है, ऐसे चैनल्स में तुम लोगों को शायद छोटी उम्र में या फिर अभी भी हो सकता है नेशनल ज्योग्राफी वगैरह वगैरह जो चैनल्स है वहाँ पे दिखाया जाता है कभी कभी कि जो जहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वहाँ से सडनली एक रिवर स्ट्रीम
फ्लो हो जा रहा है और उस तरफ है ग्रास लैंड, यानी कि फॉरेस्ट पे बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े जो जीव जंतु थे वो रह रहे थे वहाँ पे, लेकिन अचानक से एक नदी आ गया, उस नदी के उस पार से ग्रासलैंड में भी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन द what to say, the species diversity may not be so much rich as with comparison to the forest ecosystem, but yes, स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर कोई ऑल्टरेशन, यानी कि अगर ग्रेडियंट वाइज हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ज़्यादातर स्पीसीज रहते हैं और ग्रासलैंड में कम स्पीसीज रहते हैं। और मिड जो जगह है वहाँ से एक रीजन स्टार्ट होता है जिसको हम लोग इकोटोन जोन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो एवरेज स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे रहता है, और इकोटोन जोन में एक स्पीसीज डाइवर्सिटी ठीक ठाक से रहता है, लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम का इंटरमीडिएट स्पीसीज डाइवर्सिटी रहता है। सो इकोफेन, इको टाइप, इको स्पीसीज ऐसे करके कुछ टर्म्स आते हैं। इकोफेन जो है चेंजेस यहाँ पे परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पोररी वेरिएशंस होते हैं न्यू कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। इको टाइप होता है इफ टू इकोफेन्स वेयर टू रिमेन इन देयर न्यू फिजिकल हैबिटेट फॉर टू लॉन्ग, दीज मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजिकल चेंजेस विल स्टार्ट बिकमिंग परमानेंट होने लगेंगे। ठीक है, पहला जो था इकोफेन या फिर इकेट्स वो टेम्पोररी थे, इकोटाइप जो है वो परमानेंट है। देन इट कम्स टू इको स्पीसीज, if two ecotones have been separated from each other for a very long time, the adaptation becomes a permanent part of the gene। अगर जेनेटिक लेवल में पार्ट हो जाए तो उसको हम लोग इको स्पीसीज के नाम से जानते हैं। देन देयर कम्स the R selected species and the K selected species. This is a very important concept with respect to ecology, and questions have been asked from this area in GATE almost each and every year. Exceptions were there in 2022, the last time in which GATE took place. This year the question might be asked from this area. So R selected species, K selected species, हम लोग बेसिकली जो जानते हैं कि R selected species जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंपेरेटिवली K selected से कम होता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है आर सिलेक्ट स्पीसीज के पास ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो ग्रोथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है के सिलेक्टेड स्पीसीज के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसके अलावा जो है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पे शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अर्ली मैच्योरिटी हो जाता है, और ये टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व दिखाता है। और के सिलेक्टेड स्पीसीज में स्टेबल एनवायरनमेंट है, डेंसिटी डिपेंडेंट इंटरैक्शन होता है, एनिमल्स का साइज जो या फिर प्लांट का साइज जो होता है वो लार्जर होता है, यहाँ पे जो है ऑफस्प्रिंग की संख्या बहुत कम होता है, लेसर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, बट पेरेंटल केयर बहुत हाई होता है के सिलेक्टेड स्पीसीज में। आर सिलेक्टेड स्पीसीज के रेस्पेक्ट में आर सिलेक्टेड स्पीसीज में बहुत कम पेरेंटल केयर मिलता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होता है के सिलेक्टेड स्पीसीज में, और ये टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व दिखाता है ज़्यादातर, टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व भी दिखा सकता है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। Now let's look into the survivorship curve. The type 1 and the type 2 is shown by the humans, rabbits, that is the mammalian mostly, I'm not telling they always, okay. So mostly the type 1 and the type 2 survivorship curves are shown by the mammals, that is basically if you consider it under the K selected species. The type 3 survivorship curve is shown by the R selected species, okay. So please remember this, because in the y-axis you will get the number of survivors and in the x-axis you are getting the percentage of the maximum lifespan. So lifespan x-axis में और number of survivors जो होता है y-axis में होता है, और ऐसे करके सर्वाइवरशिप कर्व्स को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन साइज और टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होता है। कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो के सिलेक्टेड स्पीसीज को रेस्ट्रिक्ट करता है एक एब्रप्ट सिचुएशन या फिर एब्रप्टली ग्रोइंग पॉपुलेशन इकोसिस्टम में नहीं जाने को। ओके, सो आर सिलेक्ट स्पीसीज में ऐसा कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पे देखो डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन के सिलेक्टेड स्पीसीज में जो है वो रैंडमनेस या फिर डैम्पिंग एकदम ही मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल एनवायरनमेंट स्पीसीज को ज़्यादातर मिलता है। सो क्लैडिस्टिक्स और फेनेटिक्स में हम लोग जब डिफरेंस स्पॉट आउट करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि क्लैडिस्टिक्स जो है यूजेस वन और मोर डेराइव कैरेक्टर्स, फेनेटिक्स जो है यूजेस एल्गोरिथम्स टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटी। क्लैडिस्टिक्स जनरली जो है वो लीनिएज कॉमन एंसेस्ट्री में डील करता है, और फेनेटिक्स जो है ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव्स में डील करता है। फेनेटिक्स जो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इमर्ज्ड इन 1950, और इसके जो फाउंडर्स थे वो मिशनर थे, केन थे, और सोकल और स्मिथ ने जनरली इसको डिज़ाइन किया था। सो ये इंपॉर्टेंट है, और क्लैडिस्टिक्स जो है वो बिली हेनिग ने डिज़ाइन किया था। सो यही डिफरेंस है।
Now a question which came in GATE was in biological classification, cladistics refers to which of the following. Just before this slide we dealt with that phenetics जो है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में डील करता है, क्लैडिस्टिक्स जो है वो फाइलोजेनी में डील करता है. सो क्लैडिस्टिक्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. So in the next question, which of the following is not a typical characteristic of the R-selected species? Large size, many small offspring, a large allocation of resource to the reproduction, early reproductive maturity rate. So R-selected species में क्या नहीं होता? K-selected species में large size होता है, K-selected species में large allocation of resource होता है, और K-selected species में early reproductive मतलब early reproductive maturity rate जो है ये नहीं होता है. मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स जो है, स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स जनरली नहीं आते हैं यहाँ पे. सो आर सिलेक्टेड स्पीसीज में जो है जो आता नहीं है वो होता है मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स. यही है डिफरेंस बिटवीन जो आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज हमने देखा था, स्पॉट आउट किया. सो थैंक यू फॉर दिस सेशन. यू वुड कम बैक टू द नेक्स्ट सेशन इन अवर. So hello everyone, welcome to another session of the GATE Excel Zoology Crash Course, and this is the part 6 and I am your educator Revonto Roy. So यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में. So इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विथ रेस्पेक्ट टू GATE जूलॉजी पोर्शन. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस देखा जाता है, जैसा कि न्यूडेशन हो सकता है, इन्वेशन, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबिलाइजेशन. So in this process of ecological succession, there are basically two types of succession that are possible. So succession number 1 is the primary succession and the succession number 2 is the secondary succession. Primary succession तभी होता है जब किसी एरिया में, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ये ज़रा तुम नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बात जो है ये यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं किया गया है. यहाँ पे लाइव क्लासेस में हमने इसको बहुत डेप्थ में डील किया था. जो जिसने लाइव क्लास देखा होगा उसने जाना होगा कि डेप्थ, अगर तुम लोग नहीं देखे हो लाइव क्लास, तो यस यू शुड जस्ट रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग जस्ट नाउ कि प्राइमरी सक्सेशन जो प्रोसेस है, इट कम्स व्हेन एवर देयर इज समथिंग विच इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी विच इज डेवलपिंग फ्रॉम स्क्रैच. ओके. एंड सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो प्राइमरी सक्सेशन के बाद, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन के बाद जो कम्युनिटी बिल्डअप हुआ था वो कम्युनिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और कम्युनिटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ से सेकेंडरी सक्सेशन का शुरुआत हुआ. यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन में जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं वो they are like a phoenix bird. Okay, you know that phoenix bird come out from the ashes. Okay, and in this case सेकेंडरी सक्सेशन में भी हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ पे एशेज या फिर प्राइमरी सक्सेशन डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद सेकेंडरी सक्सेशन का शुरुआत होता है. प्राइमरी सक्सेशन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो लैंड है वो ज़्यादातर फर्टाइल नहीं होता है, प्लांट को ग्रो करने में तकलीफ होता है. लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और प्लांट झट से ग्रो कर जाता है. और प्लांट अगर ग्रो कर जाए तो वहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैन अराइव. प्लांट ने उससे भी पहले बैक्टीरियाज उस जगह को, सॉइल को फर्टाइल करने में भी मदद करता है. वो ज़्यादातर प्राइमरी सक्सेशन में देखा जाता है. ठीक है. सो कॉलोनाइजेशन would depend on the type of the land, the type of the plants which grow over there, and in this process nudation, invasion, competition and coaction, reaction, stabilization and climax community would arise. Okay, this is the basic process of the ecological succession which we have dealt. So there are another two terms which are related to succession, that is the autogenic and the allogenic succession. ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है वो ऑकर करता है द रिजल्ट ऑफ द बायोटिक फैक्टर, लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन जो है वो एबायोटिक फैक्टर के वजह से डील करता है. ठीक है. सो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेड प्लांट्स कैन कॉज द चेंज इन एन इकोसिस्टम, और यहाँ पे इट कैन ऑकर ड्यू टू वोल्केनोस, फ्लडिंग और सीजेशन ऑफ इट, ह्यूमन इंटरफेरेंस एक्सेट्रा. ऑटोजेनिक मीन्स biotic factors, allogenic means abiotic factors. So this is basically the difference. Please remember this, a question has been already asked from this area in 2021. Okay. So another thing is the species specific population interaction. So species specific population interactions में हम लोग देखेंगे कि there are different types of interactions that are possible, that is mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism and amensalism. तो म्यूचुअलिज्म में देखा जाता है कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है. कंपटीशन में जो है वो देखा जाता है कि स्पीसीज बी और स्पीसीज ए
डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, लेकिन म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन में जो बेसिक डिफरेंस है, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होते हैं और कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को धोखाधड़ी हो जाता है, यानी कि नुकसान हो जाता है दोनों को। दे आर बोथ नेगेटिवली अफेक्टेड। का प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म में एक चीज़ जो कॉमन है, यहाँ पे एक को बहुत लाभ होता है और एक को नुकसान हो जाता है। और कॉमेंशलिज्म में जो होता है, स्पीसीज ए के पास मतलब किसी को नुकसान होता है, किसी को गेन होता है और किसी को कुछ भी नहीं होता है। एमेंशलिज्म पूरा उल्टा प्रोसेस है, किसी को नुकसान हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं होता है। तो म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंशलिज्म एंड एमेंशलिज्म, तो दिस आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नाउ वी आर हियर टू क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ होस्ट। तो होस्ट डेफिनेटिव हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, पैराटेनिक हो सकता है, एडिशनल, रिजर्वॉयर, ऐसे होस्ट होते हैं। मेनली डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट एंड पैराटेनिक होस्ट यही इंपॉर्टेंट होस्ट होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरा करता है। इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ सेकेंडरी होस्ट होता है, वहाँ पे लिव करता है किसी लाइफ साइकिल का एक शॉर्ट इंटरमीडिएट पीरियड। और पैराटेनिक होस्ट होता है जहाँ से ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर होता है। रिजर्वायर, एडिशनल होस्ट भी देखा जाता है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट का डिफरेंस। Now you all know that southern blot is used for the target molecule DNA, northern blot is used for RNA and western blot is used for protein. सैम्पल प्रिपरेशन जो है सदर्न ब्लॉट के लिए डीएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन किया जाता है, और नॉर्दर्न ब्लॉट में आरएनए आइसोलेशन, वेस्टर्न ब्लॉट में प्रोटीन को एक्सट्रैक्शन। सेपरेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। सदर्न ब्लॉट में इलेक्ट्रोफोरेसिस, नॉर्दर्न ब्लॉट में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट में एक स्पेशल टाइप का मॉडिफाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट में जनरली एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉट में जो है एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, यानी कि एक डिटर्जेंट बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक है। मटेरियल मेम्ब्रेन जो है सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट में जनरली नायलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज को भी यूज किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट में जो है नाइट्रोसेलुलोज या फिर ज़्यादातर लैब जो यूज करते हैं वो पीवीडीएफ है, ठीक है। सो पीवीडीएफ एक बहुत ही बढ़िया मेम्ब्रेन है, उसमें वेस्टर्न ब्लॉट को हम लोग अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रोब। प्रोब सदर्न ब्लॉट या फिर नॉर्दर्न ब्लॉट में जो है वो यहाँ पे प्रोब लेवल या फिर प्रोब रेडियो लेवलिंग किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉट में जो है यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी बेस्ड एंजाइम, प्राइमरी एंटीबॉडी हो सकते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी, जनरली 2 लेयर ऑफ एंटीबॉडी और उसके बाद एंजाइम से हम लोग विजुअलाइज करते हैं। डिटेक्शन मेथड सदर्न ब्लॉट या फिर नॉर्दर्न ब्लॉट में तुम लोग यू कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सरे फिल्म या फिर केमिलुमिनेसेंस से डिटेक्ट किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉट में भी एक्सरे फिल्म यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा जो है केमिलुमिनेसेंस भी यूज़ किया जाता है, या फिर सीसीडी कैमरा फिल्म एलईडी भी आजकल के दिन में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन southern blot, northern blot and western blot. Okay, please remember these questions are generally asked from this area. So let's just look into one of the operon system. That is, a operon system is one of the structures of a gene. Now you should know that operon generally comprises of 2 areas, that is the regulator gene and one is the operator gene. Now in case of the regulator gene, this is basically the structure of the lac operon. In case of the regulatory gene of the lac operon, you have a I region, and the regulatory gene also comprises of a promoter of itself. Now the promoter gene, operator gene also comprises of downstream genes in the form of Z, Y, A. So lac Z, lac Y, lac A, and these genes are responsible for the synthesis of different types of enzymes that are responsible for the lactose digestion or the lactose entry into a bacterial cell. So this is a bacterial based operon, and this is regulated by a various types of factors. So this is basically the structure of lac operon, and once a question did come from this area of the lac operon, not in details but yes over the structure of the lac operon. So lac operon comprises, lac operon में जो है promoter, operator और उसके बाद downstream structural genes भी present होता है, और उसके पास एक regulatory area भी है, और regulatory area में जो gene है ये एक repressor को produce करता है। repressor जो है यहाँ पे आके operator region में bind कर जाता है। operator region में अगर directly bind कट जाता है तो यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे ये रिप्रेसर डायरेक्टली बाइंड कर जाता है। यहाँ पे आके लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रोमोटर रीजन में आता है और इस जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देता है। लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो ये लैक्टोज आके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा, और रिप्रेसर डायरेक्टली आके ऑपरेटर रीजन के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर रीजन में होगा वो डायरेक्टली जाके सिंथेसाइज करने लगेगा। लेकिन लैक्टोज जब नहीं होगा तो ऑपरेटर रीजन में डायरेक्टली आके रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर बाइंडिंग के वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज होगा
ऑपेरॉन को एक्टिवेट करने वाला वो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा डाउनस्ट्रीम कैस्केड को एक्टिवेट करने में। तो ऐसे ही जनरली लैक ऑपेरॉन वर्क करता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। थैंक यू फॉर द अटेंशन। वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। Hey all, welcome to another session by GATE Excel Zoology crash course by the Advent Biological Society. I am educator Revanto Roy and welcome you all to this extraordinary session. So, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस इन मेल। सो हाइपोथैलेमस जो है वो जनरली एक्ट करता है एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नाउ यू ऑल नो दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इन जनरल इज द मास्टर ग्लैंड। दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड के रेस्पेक्ट में काम करता है। मास्टर ग्लैंड मतलब ग्लैंड ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड के पिता, यानी कि सारे ग्लैंड्स को ये हार्मोनली कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पिता, फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक पिता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट कर सकता है ऐसा कोई ऑर्गन है, और वो जो ऑर्गन है उसको हम लोग हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स। ओके, तो रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेटेड होते हैं और वो पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं कि उस पिट्यूटरी जो है कुछ डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सिंथेसिस करे। तो हम लोग गोनाडल एक्सिस में देखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है जीएनआरएच को सीक्रेट करता है। जीएनआरएच मतलब जो है वो गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, और पिट्यूटरी को ऐसे इम्पैक्ट करता है कि पिट्यूटरी अपने एंटीरियर जो रीजन होता है वहाँ से जनरली एलएच और एफएसएच को सिंथेसाइज करता है। एलएच और एफएसएच जो है, एलएच डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है लेरिक सेल्स को। लेरिक सेल्स और सर्टोली सेल्स, ये दो टाइप के सेल्स जनरली दे आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स of our testes, okay, of the male testes. Now Sertoli cells are generally not the exactly the part of the seminiferous tubules, but yes, they play a supportive nursing role in case of the testes or the testosterone synthesis. लेडिक सेल्स से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसिस होता है और सर्टनली सेल्स से एबीपी सिंथेसिस होता है, और एबीपी जो है टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करके सारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा को ठीक ठाक से मेंटेन करता है। और यहाँ पे एक इनिबिटरी रेगुलेशन होता है वाया द इनिबिन एंड द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो शॉर्ट लूप या फिर लॉन्ग लूप फीडबैक के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस को नेगेटिवली रेगुलेट कर सकता है, और इनिबिन भी सेम काम एक साथ करता है। तो ऐसे नेगेटिव रेगुलेशन देखा जाता है, यानी कि नेगेटिवली रेगुलेट, नेगेटिवली इनहिबिशन नहीं, इनहिबिशन या फिर नेगेटिवली रेगुलेशन आइदर थ्रू टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन यहाँ पे होता है। शॉर्ट लूप फीडबैक यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करना, और लॉन्ग लूप फीडबैक यानी कि हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करना। तो ऐसे ही डिफरेंट हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही वेरी करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। तो इन केस ऑफ फीमेल देखा जाता है सिमिलर प्रोसेस, जीएनआरएच रिलीज होता है, पिट्यूटरी में जाता है, एलएच एफएसएच का एक्टिवेट करता है, ओवरी में जाता है, और ओवरी के पास यहाँ पे जो हमारे पास एग होता है ओवरी के अंदर, वो डिफरेंट स्टेजेस में आता है, और वहाँ पे दो लेयर्स जनरली देखे जाते हैं। जो एग है वहाँ पे थीका लेयर देखा जाता है, थीका के अंदर भी थीका इंटरना एक्सटर्ना होता है, और उसके साथ ग्रैनुलोसा सेल्स भी देखा जाता है, और वहाँ पे एलएच और एफएसएच डायरेक्टली एक्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस कराता है, और वहाँ पे वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन यूटेरस को प्रिपेयर करता है कि एक न्यू बॉन्ड नहीं, एक न्यू जो फीटस है उसको अटैच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग लूप शॉर्ट लूप फीडबैक देखा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन या फिर लो ईस्ट्रोजन जब भी होगा तो ओवरी नेगेटिवली लॉन्ग लूप या फिर शॉर्ट लूप फीडबैक के माध्यम से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेंगे। अगर हाई ईस्ट्रोजन है तो इंड्यूस करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में जीएनआरएच और एलएच और एफएसएच को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रेस्पेक्टिवली रिलीज करें। सो हाई ईस्ट्रोजन और लो ईस्ट्रोजन में ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन फीमेल एक्सिस में देखा जाता है। सो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में डिवाइडेड है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रोसेस हो वो एबायोटिक एजेंसीज के माध्यम से हो सकता है और या फिर बायोटिक एजेंसीज के माध्यम से भी हो सकता है। तो बायोटिक एजेंसीज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंस यहाँ पे मिर्मिकोफिली है जो एंड्स करते हैं। काइरेप्टेरोफिली, यू ऑल नो दैट काइरेप्टेरा और काइरेप्टेरान्स आर जनरली द बैट्स, ओके। Then there is ornithophily, that is done by the birds. Malacophily, that is done by the snails. Psychophily, that is done by the butterflies. Melitophily, that is done by the bees.
phalanophily, that is done by the moths. The important ones are the myrmecophily, chiropterophily, ornithophily, malacophily, psychophily, melitophily. These are the most important ones that are present. और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट है बायोटिक एजेंट्स के माध्यम से, और एबायोटिक के माध्यम से अगर होगा तो विंड के माध्यम से होता है, और एनिमोफिली, और वाटर के माध्यम से हाइड्रोफिली. ओके, ये जेनोगामी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन का. और सेल्फ पॉलिनेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है जो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेट करता है फ्लावर्स. ओके, सो हम लोग जो एक लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वहाँ पे मटेरियल्स जो है सेल्स के इनसाइड से बाहर लिया जाता है, और एंडोसाइटोसिस में बाहर के मटेरियल को सेल के इंटरनली इंजेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो दिस इज एक्सोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस, ये दोनों ही जो है ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं. और हम लोग देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर ही फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे आते हैं. फैगोसाइटोसिस पे हम लोग जानते हैं कि भारी यानी कि जो सॉलिड मटेरियल्स है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सॉलिड मटेरियल जो है वो इंजेस्ट किए जाते हैं, और पिनोसाइटोसिस में फ्लूइडिक मटेरियल्स को इंजेस्ट किए जाते हैं. तो एंडोसाइटोसिस के जनरली दो पार्ट होते हैं, अलग पार्ट्स भी होता है, क्लैस्ट्रिन मीडिएटेड, कैवियोलिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी आता है, लेकिन वो वेहिकल मीडिएटेड है. और फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस जो है वो डायरेक्टली मीडिएटेड होता है, आइदर थ्रू सॉलिड और थ्रू फ्लूइडिक मटेरियल. So the question which came in GATE 2020 is the process by which a cell secretes macromolecules by fusing vacuole membrane to the plasma membrane is called. vacuolar membrane जो है उसको plasma membrane के साथ fuse करके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मतलब सेल सिक्रीट करता है. कहाँ पे देखो, प्रोसेस बाय विच सेल secretes macromolecules by fusing vacuole to membrane to the plasma membrane. सीक्रीट यानी कि बाहर सीक्रीट करने वाला प्रोसेस जो है वो है एक्सोसाइटोसिस. यहाँ पे देखो एक्सोसाइटोसिस में बाहर सीक्रीट कर रहा था. बाकी जो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस थे, इट कैन बी द क्लासिकल एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, यहाँ पे इंटरनलाइजेशन का बात हो रहा था, यहाँ पे सिक्रीशन का बात हो रहा था. ऑप्शन विल बी एक्सोसाइटोसिस. So thank you for paying your attention for so long. We will see you in the next class, that is the class number 8. Thank you.